जेईई मेन 2024 में फोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है इस सवाल का जवाब जानना कि कैसे आप फॉर्मूलेस, रिजल्ट्स, शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। One thing which becomes extremely pain point for a student is remembering the formulas. It is how to register so much of information in the head. And that is why I have decided to come up with something called the JEE Doubt Clinic. So I know a lot of y'all face problem in remembering formulas, in registering so many results, concepts, tricks, shortcuts, and you feel कि यार हमें कुछ भी लंबे समय तक याद नहीं रह रहा है. Isn't it? कई बार क्या हो रहा है कि हम पढ़ाई तो पूरी कर ले रहे हैं, लेकिन जब सवाल हमारे सामने आ रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, हमको ये भी समझ जा रहा है कि उसको सॉल्व कैसे करना है, लेकिन हम फंस कहाँ जा रहे हैं? फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, रिजल्ट क्लिक नहीं कर रहा, स्ट्राइक नहीं कर रहा. यार वो शॉर्टकट था क्या, हम बहुत जोर लगा रहे हैं पर वो आ नहीं रहा है. That is where we end up wasting a lot of our time and we lose the game. So इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाई तो पूरी है बच्चे, लेकिन फॉर्मूला रिटेंशन में, मेमोरी पावर में दिक्कत है. When I recently asked students to fill a Google form and mention one of the biggest struggles they are facing, a very big problem that came in front of me, which was very common, and so many students wrote the same problem. It is this: how to increase memory, how to remember formulas, how to not forget all the results and all the shortcuts and tricks which we have remembered and registered in our head while studying. And that is why in today's JEE Doubt Clinic, I will be addressing this doubt and solving it for you once and for all. Are you ready? Are you ready? So let's get started. सवाल है कि अगर आप JEE मेन 2024 में फोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है इस सवाल का जवाब जानना कि कैसे आप फॉर्मूलेस, रिजल्ट्स, शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स को लंबे समय तक याद रख सकते हैं. How to not forget all of that you study. So let's get to the solution straight away. सबसे पहले प्लीज अपने जहन में उतार लो that you have to prioritize understanding over rote learning. जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसे समझ रहे हैं. You are diving into the what and the why and the how of that concept. Are you getting my point? आपको पोस्टमार्टम करना है कि यार ये क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है. अगर कोई फॉर्मूला पिक्चर में आ रहा है तो यार उसकी प्री रिक्विजिट कंडीशंस क्या हैं, उसके अननोन्स में से क्या क्या हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए जब वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, कब है ये रिजल्ट के एप्लीकेबल होने की सही सिचुएशन. तो व्हेन यू स्टडी इन दिस मैनर, in a very wholesome manner, you are understanding a concept, you are understanding the application of that formula or that result in a very deep way. And that is when it gets embedded in your system while you are studying. You don't need to separately sit and cram like a rattu tota. Like a rattu tota, you don't need to sit and cram. क्योंकि उसमें बहुत रिस्क होती है कि आप भूल जाओगे. इनफैक्ट रिस्क क्या, चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं कि आप भूल जाओगे. Okay, so please make sure that whenever you're studying, you are focusing on understanding the logic, the drive, the approach behind a concept rather than just sitting and cramming the formula or the result behind that concept. Got it? Thumbs up? All right. Second point, teach someone else. This has worked wonders for me, and I can promise you that the best way to learn something, to remember something for a very long time, is to teach it to someone. You know what I used to do? I had a whiteboard in my study area and I used to enact being a teacher back in the days. I used to enact being a teacher and I had these 4-5 virtual students sitting in front of me. I used to literally teach them. I used to write on the board in my ghatiya handwriting. I used to write on the board. I used to teach them. I used to ask them questions. Cross questioning होती थी. मैं उनके डाउट सॉल्व करती थी. उनके डाउट खुद ही दिमाग में लाके उनके डाउट सॉल्व करती थी. So this is where I am questioning myself. Are you understanding? मैंने पढ़ा है ना, मैं खुद को क्वेश्चन कर रही हूँ इस बात को इमेजिन करके कि कोई बच्चा मुझसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, and then I am only answering it.
And if in this situation, anytime I used to get stuck somewhere, I used to take a break, go back to my notebook, go back to my book, quickly revise, and then come back and explain to that virtual kid. This has worked so beautifully for me. Because when I used to feel कि यार मुझे क्लास में पढ़ाने जाना है तो मैं और अच्छे से पढ़ के जाती थी, and the focus with which I used to remember stuff was ultra. It was beautiful, like laser beam focus. तो आप ये कर सकते हो कि आप किसी को पढ़ा सकते हो, ठीक है, विच मीन्स अ वर्चुअल क्लासरूम, या फिर अगर आपके पास कोई सॉफ्ट टॉय है तो आप उसको भी पढ़ा सकते हो. इफ यू आर वाटरिंग योर प्लांट्स, यू कैन गो एंड टीच योर प्लांट्स एज वेल. इट वर्क्स द सेम. All right, or you can stand in front of the mirror and teach yourself. It reinforces memory. Whatever you already know gets reinforced in your memory and gets stuck in your system, in your complete memory for very, very long time. All right, all right. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मूला शीट. नॉन नेगोशिएबल भाई साहब, नॉन नेगोशिएबल. आपको तो ये बनानी ही बनानी है. आप चाहो तो इसको चैप्टर वाइज बना सकते हो. सारे के सारे फॉर्मूलेज उसमें ढंग से इज्जत से लिखो. उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, उनको कब अप्लाई करना होता है, कौन से अननोन्स की वैल्यू के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोई एक्सेप्शन है या फिर क्या कोई काउंटर एग्जाम्पल है. वॉट एवर यू फील इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला एंड यू फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज, put it down in the formula sheet and stick it somewhere in your study area, ताकि बार बार घूमते फिरते आप उसको देखते रहें और आपके फोटोग्राफिक मेमोरी में उसकी फोटो खींचती रहे, जिसके बाद वो बहुत अच्छे से आपकी मेमोरी में स्टिक हो जाएंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट अप इज फ्लैश कार्ड्स. मैं इस पे बहुत बार बात कर चुकी हूँ. जब भी आपके पास बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कि बाइनोमियल में है, पीएनसी में है, कितने सारे शॉर्टकट्स हैं, मैं आपके साथ वाईटी शॉर्ट्स के थ्रू भी शेयर करती रहती हूँ. इतना कुछ याद रखना यार मुश्किल होता है एंड देयर इज ह्यूज चांस कि आप कंफ्यूज हो जाएं, आप थोड़ा सा मेसअप कर दें कि कहीं का शॉर्टकट कहीं लगा दिया, कहीं का रिजल्ट कहीं लगा दिया. तो उस सब के चक्कर में हमें नहीं फंसना है. दैट इज वाई यू हैव टू केटर टू फ्लैश कार्ड्स. फ्लैश कार्ड्स में क्या होता है, दीज आर लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स, जिसमें आगे आप वो शॉर्टकट या रिजल्ट या ट्रिक लिख लेते हैं जो आपने सीखी है और पीछे उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दो. एक्सप्लेनेशन मतलब कोई एग्जांपल लिख दिया या फिर कोई सिचुएशन जिसमें वो अकर होगी या फिर किस तरीके के सवालों में उसका एप्लीकेशन बहुत समय को आपके कम कर सकता है. तो पीछे आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे जिससे आपको समझ आए कि आगे का ट्रिक क्या है. तो आगे ट्रिक है या आगे शॉर्टकट है या आगे फॉर्मूला है, पीछे उसकी स्टोरी बिल्डिंग है थोड़ी सी. ओके, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज अबाउट. तो घूमते फिरते आपको क्या करना है, आपको खुद को क्विज करना है. यू हैव टू क्विज योरसेल्फ, टेक अ रैंडम फ्लैश कार्ड, क्विज योरसेल्फ एंड चेक इफ यू रिमेंबर और नॉट. दिस वे यू आर अगेन एंड अगेन पुशिंग योर मेमोरी, फोर्सिंग योर मेमोरी टू bring that formula, that trick, that shortcut, that result from the short term memory to the long term memory. ओके, आप इतना फोर्स कर रहे हो अपने दिमाग को बार बार कभी भी ये फॉर्मूला पूछ के कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर हो जाता है. ऑल राइट, मेक श्योर यू आर मेकिंग फ्लैश कार्ड्स. नेक्स्ट अप इज एप्लीकेशन प्रैक्टिस. ओ माई गॉड, आई कैन नॉट एम्फसाइज ऑन दिस इनफ, क्योंकि इस वाले पॉइंट का मतलब है कि आपको खुद को एक्सपोज करना है टू मल्टीपल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस एंड ह्यूज वॉल्यूम ऑफ क्वालिटी प्रैक्टिस. क्या होता है ना, जब आप सवाल सॉल्व करते हैं तब आप एक्चुअली में उस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं. और जब आप मल्टी कॉन्सेप्चुअल सवाल करते हैं जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट्स, फॉर्मुलेज, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स यूज हो रही हैं, तो फिर से आप क्या कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आप अपने दिमाग से बार बार डिमांड कर रहे हो कि यार ये फॉर्मूला याद कर, वो रिजल्ट को रिकॉल करो, इस वाले कॉन्सेप्ट को याद करो, वो वाला जो हमने एक अप्रोच सीखी थी, एक ट्रिक सीखी थी, उसको याद करो. कम ऑन, bring it up. This is how you are forcing your brain to recall, to recollect. And it is revisiting back in the memory space and bringing out that formula for you. This is how you train your brain. When you are solving questions using the formulas and tricks and shortcuts and results that you've learned, it is the best way to unconsciously remember them. क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं. और आप याद रखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर नोट्स बना रहे हैं, तो ज़रूर से इस बात पे एम्फेसिस किया कीजिए कि यार आपका मसल माइंड कनेक्शन डेवलप हो रहा है. जैसे कि आप नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है विजुअल एड एंड निमोनिक्स. दिस इज समथिंग स्पेसिफिकली विच आई वॉन्ट यू टू इनकॉर्पोरेट इन योर नोट्स. दैट इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. वेन एवर यू आर मेकिंग नोट्स, जब भी आप अपने हाथ से लिखते हो तो आपका मसल माइंड कनेक्शन बहुत प्यारा डेवलप हो जाता है.
आप इतने प्रेजेंट माइंडेड होते हो उस वक्त जब आप लिख रहे हो, यू आर पिकिंग अप योर पेन एंड व्हेन यू आर राइटिंग यू आर सो फोकस्ड एंड अटेंटिव कि उतने हाई अटेंशन स्पैन में जब आप कोई भी चीज अपने दिमाग में डालोगे तो वो बहुत ही स्ट्रांगली और डीपली एब्जॉर्ब होगी. सो emphasize on making short notes. I am putting on a lot of pressure. I am putting a lot of pressure on you to make notes, to write. Okay, because that has immense amount of power to convert your short-term memory into long-term memory. To force heavy retention of concepts and formulas and results and shortcuts and tricks. और आपको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने हैं विजुअल एड्स एंड निमोनिक्स. मतलब कि आप इतनी कहानी, इतनी पोथियां, इतनी एक्सप्लेनेशन, इतनी थ्योरी लिखने से अच्छा ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ फ्लो चार्ट्स, ट्राई टू मेक डायग्राम्स एंड टेबल्स एंड लॉट ऑफ ग्राफ्स. इससे होगा क्या ना कि आपकी जो विजुअल मेमोरी होती है ना उसके लिए ये सारी पिक्चर्स, ये सारे के सारे विजुअल एड्स बहुत ही अपीलिंग होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आता है जो भी आप उसको इस तरीके के पिक्चरिस्क तरीके से समझाते हो. ओके, एंड दैट इज व्हाई देयर इज हैवी रिटेंशन, हाई रिटेंशन ओवर देयर. ऑल्सो जब आप कोई भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है या हार्ड टू रिमेंबर फॉर्मूला है, कोई रिजल्ट है, कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक है, शॉर्टकट है, तो आप इस सब चीज़ों के लिए कोई एक निमोनिक बना सकते हो, कोई एक्रोनिम बना सकते हो, कोई गाना, कोई राइम, कोई पोयम, कोई स्टोरी. ठीक है, एनीथिंग एज वाइल्ड एज यू कैन इमेजिन, यू कैन डू दैट. And that is something which you have to again incorporate in your notes so that you don't forget. And these are your final set of notes which are your short notes, जो कि 2-3 पन्ने के होते हैं. And आप eventually end में अपने रिविजन के वक्त पे कुछ मिनट लगा के इनको पलट के आप अपना पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हो. All right. So one thing which is not written in these points is making notes, and that is immensely important because that is what ensures कि आपका मसल माइंड कनेक्शन है और आपका फोकस बहुत तेज है. And that is why आप जब भी जो पढ़ोगे वो दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा. But in your notes, you have to incorporate more and more visual aids like flowcharts and diagrams and graphs and tables, tree diagram, pie chart, whatever you feel can represent so much of information in a compact and more visually appealing format. All right, and also of course you can take help of mnemonic and acronyms. Okay, so use all these points. I can guarantee you कि आपको कभी स्ट्रगल नहीं आएगा फॉर्मुलेज याद रखने में या रिजल्ट्स को रिकॉल करने में. कभी भी स्ट्रगल नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी शॉर्टकट्स हो, ट्रिक्स हो, आपको आसानी से दिमाग में बैठ जाएंगी. आपके कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन योर सिस्टम. दैट इज माई प्रॉमिस इफ यू फॉलो ऑल दीज पॉइंट्स रिलीजियसली. एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन ईट वेल, स्लीप वेल, एक्सरसाइज. बिकॉज अगर आप स्वास्थ्य से सही नहीं हैं, दिमाग से सही नहीं हैं, आप थके हुए हैं, तो एक थका हुआ दिमाग, एक थका हुआ शरीर कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता. सो डोंट अंडर एस्टिमेट स्लीपिंग वेल, डोंट अंडर एस्टिमेट ईटिंग वेल, डोंट अंडर एस्टिमेट मूविंग योर बॉडी अ लिटिल बिट टू स्टे एक्टिव and to stay positive from your head. All right. Thank you so much, folks. It's me, Bhumika, signing off. I will be coming up with another J Doubt Clinic where I will be talking about another doubt which is troubling students a lot, like mock tests में हम अपने marks कैसे improve कर सकते हैं या फिर time management techniques मैम कुछ share कर दो जिससे कि हम time को और अच्छे से manage कर सकें and we can get more and more done in less amount of time, how to increase productivity. So all of that also one by one I'll be catering to in my J Doubt Clinic short sessions. So for now, it's me, Bhumika, signing off. Please leave in the comments what are the other problems you're struggling with and I'll make sure I come with the answers for them as soon as possible. Bye-bye. Take care. Goodbye.